Today we are going to discuss about Indian economy. So this is all about Indian economy. So gross domestic product. What do you understand about the gross domestic product? The real and nominal GDP. The Ministry of SPI, MOSPI. We projected our growth will be 7.8%. Okay, and real and nominal GDP of MOSPI calculated in quarter gross value added, the constant price 2011 and 12, real GDP and current price like nominal. If we are calculating the real GDP, that will be in the constant price. Okay, so real GDP will be in the constant price and current GDP will be in the projected price. So wait a minute. Okay, so real GDP will be then the projected price. Okay, so real GDP will be in the constant price and nominal GDP. Nominal GDP will be in the current price. Okay, two things. Next is what? Next is about GDP deflector. GDP deflector is the ratio of the nominal GDP and the real GDP. Nominal and real GDP. The ratio between of two, that is called the GDP deflector. It reveals the increase in GDP that has happened on the account of higher price rather than increase in output. So increase in higher prices rather than increase in the output. So that is the increase in GDP means increase in prices. Okay, so GDP calculator, which is the production approach. Production approach is the value added at each stage. In the production approach, we'll calculate the value addition in each stage. In income approach, it measures the total income earned by the factor of production, and in expenditure approach, it measures the total expenditure by all enablers of the goods and services. So GDP calculator is introduced in 2000, 2014 and 15, and the Central Statistical Office. Central Statistical Office was the introduction, the new series of the National Accounts Statistics. So base year was the 2011 and 12. It is the base year, and the new series of incorporates the recommendation of system of national account, that was international guidelines. International guidelines. Okay, so that was the international guidelines, and wait a minute. That was given the international guidelines. Okay, so here base year was 2011 and 12. 2011 and 12, and the new series incorporate the fastest recommendation of system national account, the international guideline on the completion of national account. So here is the outdated data. We have the challenges of the GDP recalculation because our data are outdated. Accounting is unorganized sector and the exclusion production work like the household work. Okay, so it doesn't take into account the externalities such as the pollution, crime, inequality of the natural resources. First,
Second, doesn't measure the aspect like environment protection. Okay, second. So in the GDP, it will never calculate about the what was the crime, what was the inequality, what was the environment protection measures, and the third thing, what was the money on the repair work after the train cash account, like what is you are repairing and all that. So that is also not going to be calculated. Okay. So, National Multidimensional Poverty Index. It was released by the Niti Aayog. It released with the Niti Aayog. So, first thing, MPI, National Multidimensional Poverty. Who released this? This is released with the Niti Aayog. Now, page number 2. This page number 2. And we're going to rub it all. Page number 2. Here is given the steep decline in poverty headcount ratio. So it was before the 29, now it is 12, 11.23%. 24 crore of the Indian escaped the multidimensional poverty. Intensity of the poverty is also declining, and the pace of the decline in poverty headcount ratio was much faster between 2019. Later, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan was the fastest reduction in the multidimensional poverty. So UP, then Bihar, then Madhya Pradesh and Odisha. So here the multidimensional poverty is declined. All 12 indicators saw a stationary significant reduction. Cooking, fuel and housing have the highest deprivation. Child adolescent mortality, electricity, bank account and lower deprivation level. India track achieved sustainable target goals, that was 1.2. Okay, so we are still far, like, but we will go to ahead of 2030. We'll fulfill this target in the 2030. And alkaline Foster method, it is show that the breath incidence and the death poverty to identify the poor and overlapping of the simultaneous deprivation. National Multidimensional Poverty released 2021. It was National Food Housing Index, that was a National uh, Family Health Survey, that was 4. Survey number 4, Government Global Indices for the Reform and the Growth, that was a GURG. GURG is for the reforms and initiative. It was also from the Niti Aayog. It is also from the Niti Aayog. Okay. Next, GIRG monitoring India performance on various important social economic parameters. The methodology used to computing India National MPI, how to calculate it. So that is Akira Alkire Foster methodology. Dual cutoff counting method, मतलब दो बार counting नहीं होनी चाहिए. According to this, individual is the consistent MPI and deprivation equal or the exceed national MPI, that was 33% अभी है, ठीक है. That is the cutoff. तो यहाँ पे क्या क्या देखा जाता है. पहली चीज तो है कि हेड काउंट रेशो. What we see in this head count ratio. Okay. So first thing we see the important head count ratio. Head count ratio. Then proportion of the multidimensional poor in the population arrived number of the multidimensional poor in the total population. Total population में कितने हैं?
Average proportion deprivation which is experienced by the multidimensional poor, and MPI values arrived by the multiplying the headcount ratio and intensity of the poverty. So here health, न्यूट्रिशन, हेल्थ को हमने कितना दिया है 1/3, फिर हमने दिया है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के 12 इंडिकेटर्स है एंड न्यूट्रिशन को 1/5 दिया है हमने, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करेंगे कि फर्स्ट है कि सिंगल मेंबर जो है हाउस होल्ड का उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन बॉडी मास इंडेक्स देखेंगे, क्या देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, एंड आफ्टर दैट चाइल्ड बिटवीन 0 to 59 मंथ में कितने मतलब अंडर नरिश्ड है उसको देखेंगे, ऑलराइट। तो अंडर नरिशमेंट को भी हम चेक करेंगे। सो नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है कि और क्या क्या देखते हैं, है ना। तो हम देखेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ द स्कूलिंग, लाइक मैटरनल मोर्टेलिटी में 1/12 हो गए, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी में भी 1/12 हो गए। यहाँ पे हम 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे देखते हैं एडोलेसेंट में, और मैटरनल के अंदर हम लोग 5 ईयर तक देखते हैं हैज नॉट रिसीव्ड द 4 एंटीनेटल विजिट। 1/6 को हम देखते हैं स्कूलिंग में, जिसमें हम देखते हैं कि नॉट इवन वन मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड 10 ईयर और द ओल्डर हैज कंप्लीटेड द स्कूलिंग। स्कूल अटेंडेंस जो है 1/6 में देखते हैं हम, ठीक है। अटेंडेंस स्कूल ऑफ द एज जो है क्लास 8 तक आपने ली है या नहीं ली है, ठीक है। ये हो गई 1/6 पार्ट हो गया स्कूलिंग का, 1/6 पार्ट हो गया एजुकेशन को हमने 1/3 में रखा है अगेन। फिर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन में हम क्या देखते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस, दो चीजें देखते हैं, तो आपने कितने ईयर लिए, दूसरी आपका अटेंडेंस कितना है, ठीक। फिर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/3 दे दिया, इसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सबको 1/, कुकिंग फ्यूल को 1/21, सैनिटेशन को 1/21, ड्रिंकिंग वाटर को 1/20, इलेक्ट्रिसिटी 1/21, माउसिंग 1/21, एसेट्स को 1/21, और बैंक अकाउंट्स भी होना चाहिए। असेट तो है, हाउसिंग भी है आपके पास, ठीक है, हाउसिंग है, असेट है, फिर आपके पास बैंक अकाउंट है। तो ये सब चीजें आप देखोगे, क्या उसके पास इम्प्रूव हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, और टीवी टेलीविजन चलाते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमें क्या होता है, मेजर करना होता है। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। देखो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, फिर हम देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ग्लोबल इंडेक्स हुआ था जो 2023 में आया था। कब आया था, 2023 में। तो यहाँ पे रिलीज होता है ये UNDP के द्वारा, एंड इनिशिएटिव है 2010 में लिया गया था। MPI track the deprivation of the 10 indicators and it is 1.1 billion people are the multidimensionally poor, nearly 2/3 of the all poor। ऑल पुअर्स के कितने, 2/3 जो है मल्टीडिमेंशनली पुअर है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, ठीक है, DBT। तो DBT क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द टर्मिनल पिल्फरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द फंड। तो एक तो क्या करना है हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, सबसे पहले हमें क्या लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। सेकेंड चीज हम क्या करेंगे, सर्टेन स्ट्रिक्ट लेटर इट वाज द इम्प्लीमेंट अक्रॉस द। तो यहाँ पे हमें कैश ट्रांसफर कितना हुआ है, तो इसके लिए पहल बनाया है गवर्नमेंट ने, मनरेगा है और नेशनल पेंशन स्कीम्स भी हैं, ठीक है। गिवन बाय द गवर्नमेंट टू थ्रो द इंटरमीडिएट एजेंसी लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां से पैसा मिलता है। फिर अदर ट्रांसफर बेनिफिट्स होते हैं जो फंक्शनरी वो हेल्प इन फैसिलिटेटिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। तो यहाँ पे आशा वर्कर्स हैं, ठीक है, आशा के बाद में है नेशनल हेल्थ मिशन है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के बाद में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के बाद में है ICDS, नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स भी बनाई गई है, ठीक, ये सारी स्कीम्स हैं। अब हम
चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज है हमारा नोडल एजेंसी कौन है। ठीक, तो जो नोडल एजेंसी है दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट मिशन की कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर द कोऑपरेशन ऑफ डिसबर्समेंट चैनल थ्रू द पोलियो फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कैबिनेट सेक्रेटरीट है। कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या करता है, नोडल एजेंसी है। आधार की रिक्वायरमेंट होती है, नॉट मैंडेटरी, बट यहाँ पे क्या चाहिएगा, आधार चाहिएगा। प्रोवाइडिंग टू बी दिस यूजफुल टारगेटिंग द बेनिफिशियरी। देन जनधन, आधार और मोबाइल, ट्रिनिटी है ये। ट्रिनिटी क्या है यहाँ पे, जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी। उसके बाद है डोर स्टेप सेंटर पे जाना है। पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक क्या करती है, पेमेंट बैंक पेनिट्रेशन लेवल ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। और मोबाइल फोन है, मोबाइल मनी भी बन रही है अभी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट वन इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमें मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है दैट इज लखपति दीदी स्कीम बनाई थी। 2 or more women under the लखपति दीदी स्कीम start the micro enterprises. These are the micro enterprises, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप एटलीस्ट 1 लाख पर एनम की बात की गई है, 1 लाख रुपीज पर एनम की बात की गई है। इसका अप्रोच है कि जो वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की कमिटीज बनाती है, 10 से 12 लोकल वुमेन होती है। 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, 88 ऑफ देम वुमेन है, जिसमें एक है कदम्बश्री, ठीक है। तो ये जो कदम्बश्री है ये केरला में है। जीविका जो है ये बिहार में है। क्या है, जीविका कहाँ है, बिहार में है। और महिला आर्थिक विकास महामंडल जो है वो महाराष्ट्र में। लूम जो है लद्दाख में, लूम इम्पोर्टेंट है, ये लद्दाख में है अपना, ठीक है। इसके बाद है कि ग्रुप की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल, आपको क्या करना है, इंक्लूजन करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, पॉवर्टी को कम करना है आपको, ठीक है, पॉवर्टी को डिक्लाइन करवाना है, और इनकम लेवल को आपको बढ़ाना है, सेविंग को कम से कम 28% तक लाना है, और डिक्लाइन करना है क्या, इनफॉर्मल लोन्स जो है इसको 20% तक आपको डिक्लाइन करना है। तो ये सारा काम क्या था हमारा, इनफॉर्मल ग्रुप या फिर इनफॉर्मल ग्रुप का था, ठीक है। तो आज के लिए ये जैसे टॉपिक हमने पढ़े हैं तो वो आपको आने चाहिए कि हमने क्यों पढ़े हैं, ठीक है। मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आपको लिखना भी है डेली अपनी कॉपी में, ताकि आपको वो चीजें रिकॉल होती रहे, और रिकॉल करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। पेज नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो मेजर इनिशिएटिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, पहला क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना है, अंत्योदय अन्न योजना। फिर है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। रूरल वाला किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल पुअर वुमेन्स इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, नर्चरिंग द सपोर्टिंग देम फॉर द रिनोड एज ए डे, लाइक 2015 से ये चल रहा है, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो रिनोड एज ए डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन 2015, वैसे ये 2011 में आ चुका था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। अगला है स्टार्टअप विलेज, स्वीप बोलते हैं जिसको, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे सब स्कीम है अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, 2016 में आई थी ये भी। स्वीप में क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, अपग्रेड जो एंटरप्राइजेस है उनको नॉन फार्म सेक्टर के अंतर्गत।
फिर एक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 से आ गई है सशक्तिकरण। इसमें मेकिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, द पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो महिला किसान का सशक्तिकरण परियोजना है। फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 से चल रही है ग्रामीणों में कौशल्या योजना। पुअरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर है, उनको एज होती है 15 से 35, उनके ऊपर फोकस्ड है हम। फिर है वुमनिया योजना। वुमनिया योजना 2019 से चल रही है, ग्रामीण कौशल्य योजना 2004 से, और वुमनिया योजना 2019 से चल रही है। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को बनाएंगे, देन टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। फिर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द प्रोवाइडेड ड्रोन, मतलब ड्रोन्स भी हैं जो कि वुमेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज 15,000 सेलेक्टेड वुमेन्स को आप क्या करोगे, ड्रोन प्रोवाइड करवाओगे। ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। अब ये कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें आपको क्या करना है, बैंक के साथ लिंकेज करवाना है। तो कौन कौन सी बैंक है, जैसे माइक्रो फाइनेंस हो गया, नाबार्ड। नाबार्ड कब बना था, 1992 में। फिर उसके बाद अंडर द प्रोग्रेस बैंक ओपन सेविंग अकाउंट्स बनाएंगे, क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर पोजिशनिंग करेंगे। बैंक सखीज होती हैं उसके थ्रू, जैसे रूरल बैंक से वहां पे क्या है, बैंक सखीज होती हैं। ऑलराइट, फिर है इनिशियल कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मर्चेंट्स होते हैं, रूरल बैंक ब्रांचेस हैं यहाँ पे। क्रेडिट लिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्या है, क्रेडिट को लिंक करने वाला क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसके थ्रू भी इनको मनी प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट लिंकेज करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। तो ये सारी ही चीजें इनको क्या है, एक तो रीजनल रूरल बैंक है वो भी इनको प्रोवाइड करवाते हैं, जो रूरल बैंक है वो भी इनको मनी प्रोवाइड करते हैं। फेज 1 के अंदर 1990 से लेकर 2005 तक यहाँ पे आरबीआई ने अलाउड किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि लैंडिंग वाज प्राइमरली सब्सिडी ड्रिवन होना चाहिए, इनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। फेज 2 आया था 2005 से लेकर के 2012 तक। यहाँ पे कहा गया था कि टारगेटिंग इंडिविजुअल टू ग्रुप, जो कि ग्रुप है या इंडिविजुअल है उनको टारगेट करना है, उनको क्या करना है, लैंड करना है हमें। देन 2012 से प्रेजेंट तक जो थर्ड फेज चल रहा है इसको कहते हैं डेडिकेटेड आर्किटेक्चर प्रोफेशनल सपोर्ट। इसमें क्या है, डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बना रखा है हमने, जिसके थ्रू प्रोफेशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनल support, we are providing them professional support. All right, so this all about the self help group. So अभी के लिए, आज के लिए